सर, नमस्कार नमस्कार, कैसे नमस्कार, हैं सर? एकदम मजे में। So happy to see you, sir, Yes, same and here. very eager to listen you, sir. We will all discuss together. सभी साथियों को नमस्कार, सभी महानुभाव को, सभी बड़ों को खूब खूब नमस्कार, प्रणाम। रमेश भाई भी आ गए हैं। धर्मेंद्र भाई वेलकम। यस अभय भाई। रश्मिन भाई बधाने नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार भाई भाई। हाँ। Hello, Dharmen. Hi, Neil. Nice to see you. Okay. Shall we start now? हाँ। हाँ? Yes, yes. कृष्ण कुमार जी, आप कुछ ओपनिंग शब्द बोलना चाहेंगे? ठीक है सर, 2 मिनट। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल प्रिविलेज। अरे आप सभी को मेरा भाव भरा नमस्कार। रश्मिन सर, थैंक यू सो मच हम सबको इस यात्रा में शामिल करने के लिए। एंड मैं बहुत थ्रिल्ड हूँ सर, एंड बहुत लास्ट 2-3 दिन से उत्साहित हूँ। एंड पिछले 16 दिन में आपने करीब 4-5 नोट जो भेजे हैं वो सभी मैंने स्टडी किए हैं। एंड सभी एक के बाद एक लिंक जुड़ती जाती है, उनको पढ़ते हैं एक साथ में। एक ही दिन में अगर एक साथ पढ़े तो बहुत ही आनंद देता है। एंड इसलिए आज की जो ज्ञान गंगा बहने वाली है, एंड उसमें हम सभी को 20-25 लोग सभी को खूब खूब लाभ होने वाला है, एंड जीवन को एक नई राह मिलेगी बिल्कुल इस डिस्कशन से, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ सर। तो सबसे पहले थैंक्स टू ऑलमाइटी गॉड कि उसने ये सब संभव किया है, एंड थैंक्स टू यू, एंड थैंक्स टू सुदर्शन अय्यर साहब एंड मैडम ऑल्सो। हाँ, आनंदी जी, उनका मैंने वो छोटा सा राइटअप आपने भेजा था वो भी पढ़ा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो बुक भी हम स्टडी करेंगे एंड हम उसको भी आगे लेके जाएंगे। बराबर है। And I will request her to speak for 5 minutes today. Yes, we would love to listen her, certainly. Yes. Kanu bhai, welcome sir. Thank you, sir. Thank you. Namaste. મારી એક રિક્વેસ્ટ છે કે મને બધું બંધ કરી દઈશ. એડિટિંગ ડાયરેક્શન આવી ગઈ હતી. હા, મને માફ કરજો બસ. ના ના બરાબર, તમે વિડિયો બંધ કરી દો અને ખાલી ઓડિયો જ સાંભળો. બરાબર. હાજી હાજી. Okay. So let us start now. Today we have got a few new friends. Actually Sudarshan by telephone, he stays in Dharampur. His internet line has got disconnected. So if the line gets connected, then he will join. Otherwise, he will not be able to join. Otherwise, he was to be a panelist today. Then Mrs. Anandi Ravinath, she has joined her. Anandi ji, welcome. Thank you, thank you. Thank you so much. You're most welcome, and we would like to hear you. And of course, throughout the discussion, we can, right now, I think internet bandwidth seems to be good. So we can all be on the audio video. But if internet bandwidth goes bad, then I think most of you can put off your audio video. Mr. Dharmen Shah is a chartered accountant, and we know each other for last 40 years. So all those who have attended FPD annual meetings, you might be knowing Dharmen Bhai. He has joined our meeting for the first time. Anandi ji has joined for the first time. Dinkar Joshi is my friend from 1967. So he is the oldest friend. He is a chartered accountant. And whenever I fly high, he brings me back to earth. Kapil Sanghvi, I am happy he has been able to join. And Mr. Ganeriwala, he is an expert on Gita. Of course, he is a chartered accountant from Nagpur. And of course, most of our friends here are chartered accountants because our normal friendship is in our circle. So Anandi ji, Sudarshan Bhai, and Mittal Patel, these are exceptions. So Mittal Patel is a karma yogi, and she is the most fit person to understand all these things. Okay. Now, I have sent several notes, and ultimately I will compile all the notes put together, try to connect each other.
and based on today's discussion also, there will be some additions, and ultimately I will send it to all the people who participate here. And probably this may not be it may not be completed in one meeting, so we may require a second meeting also. Just 2 lines for the people who have joined for the first time, that under the chairmanship of Kanubhai Doshi, we have been discussing philosophy since the year 2018. In last 3 years, we have covered several subjects, and today this is a very high level subject. It is so complex that most people find it difficult to read, difficult to understand it. And yet it goes to the roots of every religion. It is not just Hindu religion, not just Indian religions, but people have done meditation in China also, in Lebanon also, in USA also. USA of course has a limited history, but in Europe also, 1000 years back also, people have done meditation. Meditation is a key to realize the ultimate truth. Okay. Now, why I am saying this, what is the reason, I will explain to you immediately. I don't know how many of you are aware of the richness of our languages. You know, I am a Gujarati, but Gujarati, Hindi, Bengali, all these languages have descended from Sanskrit language. So our heritage is Sanskrit. Now, in Sanskrit language, just the first alphabet, Ka. Can you imagine that Ka also has a meaning by itself? And Ka, if you, maybe very few of you may be aware, but the king of Maharaja of Gondal, he had got published a book which is Encyclopedia in Gujarati. In that book, for the letter Ka, he has given 51 meanings. One important and relevant meaning is that Ka means Brahman, the ultimate authority which is above all gods. So Ka is Brahman. Kha has got some 14-15 meanings, but one meaning is Akash. So from Brahman, Haji. Okay. So the language, in our language, each letter has several meanings. Ga means somebody which gati karnar. Hindi mein bolo to gati karnar means somebody who is moving, and that is why kha ga means a bird. A bird is an entity which flies in the sky, hence kha ga. Now in this language where one letter can have several meanings, then we can understand that every word can have several meanings. You might have, I think in our philosophy group, I had sent Kabir's Bhajan sung by Sabnam Virmani. She says that Ram, or rather Kabirji says, Ram has 4 meanings. One which everybody knows is Dasrath ka beta. Second meaning is घटघट में बसा. घटघट में बसा मतलब क्या कि संस्कृत में शरीर को एक उपनाम दिया है घट. शरीर एक घड़ा है, जब घड़ा फूट जाता है तो शरीर नष्ट हो जाता है, और इसके ऊपर आगे मैं थोड़ा बात करूंगा. मगर घट-घट में बसा है मतलब every individual human being, animal, plant, insect, everybody has God residing in it. And that is the second meaning of Ram. Then the third meaning of Ram is Brahman, which again we know, and as per Vedantic Advaitvad, Brahman is situated in everything. Brahman permeates into everything, pervades everything. Isopanishad, very famous slok, says that Bhagwan तो सब में बसे हुए हैं. तो कबीर जी कहते हैं राम शब्द का तीसरा मीनिंग ये है ब्रह्मन, और उसका चौथा मीनिंग ऐसा है कि कोई समझा ही नहीं सकता है. ब्रह्मन चीज, इसको संस्कृत में और हिंदी में बोलते हैं इंद्रिय अगोचर. इंद्रिय अगोचर मतलब कि इंद्रिय से जो कुछ समझ नहीं सकते हैं वो अपने मन और बुद्धि के परे है. तो उसको कैसे समझोगे, ब्रह्मन को कैसे समझोगे?
तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसीलिए हर एक धर्म में ब्राह्मण के लिए अलग अलग व्याख्या है। एक हिंदू धर्म में 50 से ज्यादा ओपिनियन चल रहे हैं। हाँ, हर एक अलग अलग अपना अपना धर्म बना के बैठे हैं। एसेंशियली ओवरऑल देयर इज कॉल्ड हिंदू धर्म, बट मेन देयर आर 6 दर्शन्स इन हिंदू रिलीजन। ओके, नाउ अगर 6 दर्शन है जो मुख्य दर्शन है, फिर जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इतने सारे धर्म अगर है तो कोई पूछे कि भाई ये धर्म में अल्टीमेट रियलिटी क्या है, अंतिम सत्य क्या है, तो आप कैसे जवाब दोगे? जो बुद्ध को मानने वाला है वो बोलेगा कि बुद्ध भगवान ने जो कहा वो सही है। क्रिश्चियन ने बोलेगा जीसस क्राइस्ट ने कहा है, बाइबल में लिखा है वो सही है। इस तरह से जाओगे। एक्चुअली हिंदू धर्म में अल्टीमेट ट्रुथ बोलते हैं कि अद्वैत है। तो ये अद्वैत के ऊपर भी 5 विचार है अलग अलग। अद्वैत का एक ही मतलब नहीं हो रहा है, अलग अलग बहुत सारे मतलब हो रहा है। इसको हमने अपने फिलोसॉफी ग्रुप में डिस्कस किया हुआ है, मगर जो आज की तारीख में पहले आए हुए हैं उनको बता दूं कि हमने अनेकांतवाद के ऊपर 2-2.5 घंटा चर्चा की थी। अनेकांतवाद का इतना ही मतलब है कि हर एक इंसान अलग अलग सोचेगा। वो क्यों सोचेगा अलग, उसका क्या कारण है और उससे लाभ है नुकसान है, वो सब हमने 2-2.5 घंटा तक चर्चा की थी। लकीली वो डिस्कशन हमारे पास YouTube पर है और किसी को भी अनेकांतवाद के ऊपर समझना है तो जरा हमें बताइए, मैं उसकी लिंक दे दूंगा, तो वो आप फिर से ऑडियो देख सकते हो। इतना है कि अनेकांतवाद समझने से जो लड़ाई झगड़े हैं बहुत कम हो सकते हैं। और इसका एक कारण है कि अनेकांतवाद ये कहता है कि हर एक इंसान अपनी तरह तरह से सोचेगा और वो अलग सोचता है, उसमें हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। इसके लिए बताते हैं कि हिंदू धर्म में कोई एक धर्म संस्थापक नहीं है। जैसे बोलोगे कि क्रिश्चियन धर्म में जीसस क्राइस्ट ने किया, मुस्लिम धर्म मोहम्मद पैगंबर ने किया, ऐसे हिंदू धर्म में कोई एक फाइनल अथॉरिटी नहीं है। तो हर एक आदमी अपना अपना विचार बोलते हैं और जैसे नए पंथ आते हैं, स्वामीनारायण पंथ है, वो एक नया पंथ हो गया। इस तरह से हर सेंचुरी में 2-2, 3-3 नए पंथ आते रहते हैं, लोग अपना अपना विचार बोलते रहते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि तुम्हारा विचार अलग है इसके लिए मैं तुम्हारे साथ झगड़ा करूं। ये हिंदू धर्म में बिल्कुल है नहीं। और दैट इज व्हाई आई से हिंदू धर्म इज मोस्ट डेमोक्रेटिक रिलीजन। मैं ये मानता हूं, आप अपने को जो मानो वो नक्की करो, और अपने दोनों के विचार अलग अलग होंगे तो इसका ये कारण नहीं है कि हमें कोई लड़ाई झगड़ा करना है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डज नॉट मीन एनीथिंग, वी कैन स्टिल बी फ्रेंड्स। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अनेकांतवाद। ओके, बट ए सीरियस सीकर पर्सन, साधक, ए पर्सन हु रियली वांट्स टू नो द अल्टीमेट ट्रूथ, तो वो बोलेगा ठीक है भैया, दुनिया में 50 व्यू होंगे, 100 व्यू होंगे, मगर मुझे एक अल्टीमेट ट्रूथ चाहिए। तो वो मैं कैसे जानूं, उसका जवाब मुझे कैसे मिलेगा? और बहुत सारे लोग इसी ट्रूथ की सर्च में, सत्य की शोध में गुरु को शोधते रहते हैं। बोलते हैं मुझे गुरु मिल जाएगा, अच्छा गुरु मिल जाएगा तो मुझे सत्य मिल जाएगा। धर्म ये कहता है कि जो धार्मिक गुरु होगा वो आपको बताएगा कि बेटा ये मेरा सत्य है, ये मैं तुम्हें कहता हूँ और मुझे भगवान ने यही सत्य बताया हुआ है। हाँ, आई थिंक किसी का ऑडियो चालू है, उससे बहुत आवाज आ रही है। Can we request everyone to keep the audio off until you would like to speak? हाँ, अपना अपना हर एक आदमी अपना ऑडियो बंद कर देवे तो अच्छा रहेगा, तो ये जो डिस्टरबेंस आ रही है वो नहीं आएगी। और अभी वीडियो अपना इंटरनेट बैंडविड्थ अच्छी है तो वीडियो भले चालू रहेगा, खाली जब भी आपको बोलना होगा तो जरूर अपना ऑडियो चालू कर दीजिए। मगर हाँ, ये जो डिस्टरबेंस आ रहा था वो बंद हो गया। थैंक यू। ओके, सो सवाल ये है, धर्म आपको ये बताता है कि धर्मगुरु कहेगा ये सत्य है, इसमें आप शंका मत करो और किसी भी तकलीफ के बगैर ये तुम मेरे पास से मान लो। ये स्पिरिचुअलिटी में ये नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि तुम खुद अपने शरण में जाओ।
तुम अपने पास से अपना सत्य ढूंढो और वो सत्य तुम्हें मिलेगा। जो सत्य तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारा सही सत्य है। ओके, अब वो लोगों को शंका होगी कि भाई मुझे जो सत्य मिल रहा है, मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो ही सत्य है, वो ही फाइनल है, वो मैं कैसे मानूं? एक चीज ये है। और दूसरी, मैं खुद बोलता था, जब आज से 15 साल पहले कोई मुझे बोलेगा तू अपने भीतर जा, यू गो विद इन, तो उसका कोई मतलब ही समझ में नहीं आ रहा था। भीतर जा का मतलब क्या? मेरी आंखें बाहर ही देख सकती है, मेरी आंखें शरीर के अंदर नहीं देख सकती है। मेरी आंखें मेरे मन के अंदर क्या है वो भी मुझे पता नहीं है। तो वो सब पता कैसे चलाने का? तो दैट इज वेयर द सॉल्यूशन कम्स फ्रॉम पतंजलि योग दर्शन, पतंजलि योग सूत्र। This is the sutra which says how you can go within, how you can search for your own answer, and your answer will be the final truth for you. And do not worry, दूसरे किसी का भी जवाब अलग होगा, तो don't worry, you go for your own truth. This is the spirituality. Spirituality हर एक इंसान को कंप्लीट फ्रीडम देती है कि भाई आप अपना सत्य ढूंढो, और वो सत्य सही है कि नहीं है उसके लिए पतंजलि योग सूत्र में पूरे डायरेक्शन दिए है कि आप अपनी तरफ से ही टेस्ट करो। आपको मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, आपको और किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है। आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करने से आपको जो जवाब मिलेगा वो सही होना चाहिए। मगर मेडिटेशन मतलब क्या? सो वी आर गोइंग फ्रॉम स्टेज टू स्टेज, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। नाउ ए रियल सीकर, he wants to find out the ultimate truth. वो कैसे ढूंढेगा? तो उसके लिए पतंजलि योग सूत्र में मेडिटेशन बनाया है। ओके, अभी मेडिटेशन के बाद में भी जो जवाब मिलेगा वो मेरा दिवा स्वप्न है, वो मेरा भ्रम है कि वो हकीकत है, वो मुझे कैसे पता चले? तो उसके लिए पतंजलि योग सूत्र में पूरी डिटेल दी है कि आप ये समझो। अच्छा, अभी थोड़ा मैं इसमें पतंजलि सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल कर रहा हूं कि पतंजलि योग सूत्र का मतलब ये नहीं है कि पतंजलि ऋषि ने हमें योग सूत्र दिए। एक कंपैरिजन मैं बताता हूं कि न्यूटन टोल्ड अस द लॉज ऑफ फिजिक्स, द 3 लॉज ऑफ फिजिक्स, एक्शन, रिएक्शन वगैरह, और न्यूटन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। ग्रेविटी के ऊपर उन्होंने पूरा रिसर्च किया, ठीक है। तो न्यूटन नहीं थे तभी ग्रेविटी नहीं थी क्या? न्यूटन नहीं थे तभी फिजिक्स के लॉज ऑपरेट नहीं करते थे क्या? ऐसा नहीं है। Papa, can you make me a host also? Yeah, A co-host? You can right click on. Yeah. I'm muting now everybody except myself. I'm sorry, but different people have different disturbances, so it is better we avoid the disturbance. I'm sorry. Okay, तो मेरा कहना ये है कि पतंजलि was a compiler of the technique of meditation of योग सूत्र। पतंजलि ऋषि हुए उसके पहले भी लोगों ने मेडिटेशन किया है। जो लोग हिंदू धर्म में नहीं मानते हैं, जिन्होंने पतंजलि शब्द का नाम भी नहीं सुना है, वो भी मेडिटेशन किया हुआ है। जैसे मैंने पहले ही बताया, चीन से लेके लेबनान से लेके यूरोप में सभी जगह पे मेडिटेशन हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जो ट्राइबल्स थे, रेड इंडियन अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में, उनके जो ट्राइबल्स थे, शायद उन्होंने भी किया होगा, मगर उनकी हिस्ट्री, उनका फिलोसॉफी वगैरह अपने को पता नहीं है। मेडिटेशन इज ए लाइक ए गॉड्स गिफ्ट। जैसे प्रकृति है, प्रकृति को साइंटिस्ट समझ के हमारे सामने साइंस के प्रिंसिपल्स रखते हैं। वो प्रिंसिपल्स रखते हैं, ही इज ए पर्सन हु एक्सपोजेस द ट्रुथ। उसके पहले हमें वो ट्रुथ का पता नहीं था। लोग तो ग्रेविटी का तो अनुभव हमेशा करते ही थे, मगर जब न्यूटन ने बताया तभी पता चला कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे क्यों गिरती है। तो इस तरह से पतंजलि जी ने हमें समझाया है कि मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। पतंजलि इज नॉट द ओनर ऑफ योग सूत्र। पतंजलि इज नॉट द पर्सन हु डेवलप्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन इज सेक्युलर। सेक्युलर मतलब कि वो कोई एक धर्म की सीमा नहीं है, वो हर एक इंसान जो भी करना चाहे कोई भी कर सकता है। ये हुआ पतंजलि के बारे में।
अभी मैं ये भी बताऊं कि महावीर भगवान, बुद्ध भगवान, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, ये सभी ने मेडिटेशन किया हुआ है। और शायद मोहम्मद पैगंबर और जीसस क्राइस्ट को पतंजलि योग सूत्र का कुछ भी पता नहीं होगा। ये पॉसिबल है कि उनको पता होगा भी, मगर कहना ये है कि आप किसी भी धर्म को मानो, आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन वो कोई एक धर्म के साथ में कनेक्टेड नहीं है। ये एक मेरा एक इम्पोर्टेंट विचार है। दूसरा, मेडिटेशन एक आज की तारीख में एक कमर्शियल चीज हो गई। अभी तो थोड़ा कम हुआ है, मगर देयर वाज अ टाइम व्हेन लॉट ऑफ पीपल वर डूइंग मेडिटेशन, और यूरोप अमेरिका में मेडिटेशन की एक पैशन चली थी और योग के बहुत सारे क्लास चल रहे हैं। आज भी बहुत सारे क्लासेस मुंबई में भी चल रहे हैं, मगर ये जो क्लासेस है उसमें 90% इम्पोर्टेंस वो शरीर की कसरत को देते हैं। अलग अलग प्राणायाम करो, अलग अलग कसरत करो, उसी को वो योग मानते हैं। कसरत से योग शुरू होता है, कसरत से योग पूरा होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। पतंजलि योग सूत्र एक 196 मतलब 196 सूत्र का एक पूरा ग्रंथ है। उसमें प्राणायाम और शारीरिक कसरत के ऊपर खाली 4 श्लोक कहे। तो उसका महत्व 2% ही है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि पतंजलि कहते हैं और बहुत सारे ऋषि मुनि ये कहते हैं कि अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो ही आप आध्यात्मिक अभ्यास कर सकोगे। आपका शरीर अगर दुर्बल होगा, आप अगर बीमार है, कमजोर है, या तो बहुत वृद्ध हो गए कि आपकी फैकल्टीज स्लो हो गई है, तो वो समय में आप धर्म का अभ्यास नहीं कर सकोगे। कुछ लोग जो बोलते हैं कि मैं धर्म का अभ्यास रिटायर होने के बाद में करूंगा, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब भी आप रिटायर होगे तभी आपकी बुद्धि शक्ति भी क्षीण हो गई होगी, आपको पूरा समझने में भी नहीं आएगा। तो ये कोई 60 साल के बाद में करने की चीज नहीं है। ये समझना है जो उम्र में आपको ये चीज में इंटरेस्ट लगे वही सही उम्र है। मेरे दोस्त दिनकर के साथ बारे में मैं आपको एक बताऊं, वो हमारी एक बार बात हो रही थी कि कौन सा मुहूर्त अच्छा, शुभ मुहूर्त क्या। तो अपने इंडिया में तो मुहूर्त देखने का एक बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। तो दिनकर ने कहा कि जब भी मुझे उत्साह हुआ वो शुभ मुहूर्त, उसके सिवाय और कुछ नहीं। तो इसी तरह से मैं कहता हूं कि जब भी आपको आध्यात्मिक अभ्यास में रुचि लगे, when you are interested in studying spirituality, then you start it. There is no fixed time for it, but earlier the better. Don't wait until retirement. Okay. Now I think I have said a lot. If anybody wants to raise any issue, because this is a discussion, this is not a monologue, then you can please raise your issue. Okay. You want to ask anything or you want to comment on anything? As we proceed, at any point of time, if anybody wants to make any comment or wants to give any thought, please raise your hand so that I will unmute you, and then you can make your comments. सर मैं खाली एक छोटा सा कमेंट ऐड करूंगा। हाँ जी, जरूर। एज यू वेरी राइटली सेड, क्योंकि ये मैं भी वर्षों से सुन रहा था कि पतंजलि साहब जो ये अष्टांग योग बोलते हैं, ये आखिर है क्या चीज। तो कई बार इस बारे में जिक्र होता है अष्टांग योग, लेकिन बेसिकली हम लोग ये जो आसन करते हैं या प्राणायाम करते हैं या जो सो कॉल्ड कसरत, जो आपने वर्ड यूज किया, हम लूजली उसी को योग समझ लेते हैं बेसिकली, बट दैट इज नॉट कंप्लीट। मतलब यू वेरी राइटली सेड। तो उसमें जो पहली चीज जो स्टार्ट होती है बेसिकली वो यम नियम से ही शुरू होती है उसके अंदर। बराबर जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, आप अपने तरीके से बताते रहे लास्ट 10 सालों से, उस चीज को हम पतंजलि के हिसाब से नहीं समझ पा रहे थे। जैसे आप हमेशा प्योरिटी ऑफ थॉट पे जोर देते थे, आप हमेशा एक सीए का ऑनेस्ट आचरण पे जोर देते थे हमेशा। तो मैं सोचता था इसका बाकी चीजों से क्या कनेक्शन है, ऐसा मतलब उसके अंदर। लेकिन जो पतंजलि है वो यही चीज बताते आते हैं उसके अंदर कि जब आप समाधि तक पहुंचते हैं, अष्टांग योग का 8वां हिस्सा समाधि पे जाके खत्म होता है उसके अंदर, तो उसके पहले सबसे पहला यम से ही शुरू होता है उसके अंदर। यम नियम यानी आप अपना कंडक्ट जो है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, अगर आपका वही सही नहीं है तो फिर बाकी चीज के आप अधिकारी नहीं हो। जो बार बार में हम लोगों को बोलते हैं ना कि आप ये ब्रह्मन को जानने के अधिकारी तो हो क्या, मतलब कई चीजों में आप पूछते हो ना कि मतलब आप अधिकारी तो क्या इस चीज के। सो यू वेरी राइटली सेड एट डिफरेंट ओकेजन
कि अधिकारी बनना पहले जरूरी होता है उसके अंदर। तो इसलिए हमारे को यम और नियमों पे जोर देना बहुत जरूरी है। तो जो गांधी जी का भी आप जिक्र करते हैं अपनी कई मीटिंगों में, आपने जिक्र किया, आपकी वो इसमें भी था जो लास्ट राइटअप था उसके अंदर भी, जो गांधी जी के 5 शस्त्र थे, तो वो बाद में आपसे सुनना चाहेंगे। बट वो भी सभी कड़ियां जुड़ती आ रही है, जो थोड़ी 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 फ्रेगमेंटेड डिफरेंट टाइम पे 20 सालों में कहीं कहीं सुनी या कहीं पढ़ी है या देखी है, वो आप अभी सब धीरे धीरे सब जुड़ रही है अपने आप, मतलब ऐसा लग रहा है। बराबर है, प्लीज। बराबर। हाँ, ये पतंजलि जी का जो मैजिक है और जो उसका बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने पूरी विद्या अपने सामने रख दी है। गांधी जी ने हमें कहा कि सत्य और अहिंसा बहुत महत्व की चीज है, ओके, मगर पतंजलि जी कहते हैं कि ये सत्य, अहिंसा और ये करके पूरा अष्टांग योग आप पूरा करो तो आपको यू विल बी अधिकारी। अच्छा, अभी मैं पहले ये अधिकार शब्द का भी थोड़ा 2 मिनट बोलना चाहूंगा, और अपना फिलोसॉफी ग्रुप में तो इसके ऊपर बहुत चर्चा हो गई है, मगर आज के हमारे जो पहली टाइम जो गेस्ट आए हैं उनके लिए मैं बताऊंगा। अधिकारी शब्द का जो हकीकत में अर्थ है वो तो आज की तारीख में लोगों को पता ही नहीं है। अधिकारी मतलब हम ये समझते हैं कि कोई ऑफिसर जिसके पास सत्ता है, मगर ओरिजिनल संस्कृत वर्ड जो है अधिकारी, उसमें ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है। अधिकारी मतलब फिट टू और कैपेबल ऑफ, मतलब कि एक इंसान जब एक अच्छे लेवल पर पहुंचेगा तो वो कोई विद्या समझने का अधिकारी बनेगा। वो अगर अच्छे लेवल पर नहीं पहुंचा है तो वो विद्या का अधिकारी नहीं है। ओके, विद्या का अधिकारी नहीं है का मतलब क्या? और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और मैं भी आपको उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा इलाबोरेट करूंगा। हमारे में ये कहते हैं कि जैसा आहार ऐसी आपकी तबीयत। किसी ने अलग खराब चीज खा ली तो उसकी तबीयत खराब हो गई। कोई आदमी ऐसा है कि जो हमेशा पौष्टिक चीज खाता है और जंक फूड खाता ही नहीं है या तो मिनिमम खाता है, तो उसकी हेल्थ अच्छी रहती है। ठीक है। फिर एक दूसरी कहावत है, और मुझे ये अपने दिनकर जोशी के कजिन है मिस्टर व्यास, उन्होंने कही थी कि आप अगर धंधे में शुद्ध हो तो ही आपका विचार शुद्ध होगा। तो इसके लिए बोलते हैं कि जैसा आपका आचार विचार, सॉरी, जैसा आपका आचार वैसा ही विचार। आप जिस तरह से वर्तणुक करते हो, आप धंधा में सब कुछ, एक्चुअली अपने को ऑनेस्ट तो हर एक फील्ड में रहना है। ओके, घर में भी रहना है, मित्रों के साथ में भी रहना है, संबंधियों के साथ में भी रहना है, और बिजनेस में भी रहना है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि भाई पैसा कमाने का है तभी तो मैं कुछ भी कर लूंगा। पैसा कमाना है तो उसमें आप ये सब सत्य अहिंसा वगैरह बीच में मत लाइए, वो मैं कर लूंगा। बाकी जब सुबह भगवान की प्रार्थना करूंगा या तो घर में होगा तो मैं सत्य अहिंसा का प्रयोग करूंगा। अभी पतंजलि जी का ये समझाना है और ये मेरा दृढ़ मानना है कि मेरी आवक, मेरी इनकम अगर दूषित है, पोल्यूटेड है, तो मेरे दिमाग के विचार भी पोल्यूटेड रहेंगे। अभी ये अपनी इंडियन फिलोसॉफी की एक प्राइम क्या बोले प्रिंसिपल है। बहुत लोग ये नहीं मानते हैं, वो लोग मानते हैं धंधा आप कुछ भी करो और शाम को जाके आप चर्च में या मंदिर में जाके प्रार्थना कर लो, आपका पाप का सब कुछ मिट गया। या तो कुछ लोग पाप पुण्य में मानते ही नहीं, कर्म का सिद्धांत में मानते ही नहीं है। हमारे यहाँ एक पूरी फिलोसॉफी है कि आपका जो आचार है, जो विचार है, जो अन्न है, ये सब कुछ मिलके आपके पास जो कमाई आती है उसके ऊपर से आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। स्ट्रेंथ फॉर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ओके, अभी मैं यहाँ तक कहूँ कि आज से मैं 30 साल से चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के साथ में एसोसिएटेड हूँ। ठीक है, और मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि भाई आप 2 नंबर का पैसा मत लो, और 2 नंबर का पैसा तो एक शुरुआत की बात है। हाँ, अगर मानो कि एक आदमी है, उसने पूरा इनकम टैक्स भरा है मगर उसका धंधा ही गलत है, उसका धंधा ही लोगों को चीट करने का है, समझो वो व्यापारी है, वो पोल्यूटेड चीज या तो इंफीरियर क्वालिटी ऑफ फूड वगैरह सप्लाई करता है, तो उसका धंधा गलत है। और जो आदमी का धंधा गलत है उसकी कमाई की ताकत भी गलत कम है। अभी कमाई की ताकत, पैसे की ताकत, ये शब्द हम कभी सुनते नहीं है। पैसे की ताकत तो हम समझो एरिथमेटिकली गिनते हैं कि एक आदमी के पास 100 रुपया है,
एक आदमी के पास 1000 रुपया है तो जिसके पास 1000 रुपया उसकी ताकत 10 गुनी बढ़ गई। मगर अपनी फिलोसॉफी ये सिद्धांत नहीं मानती है। अपनी फिलोसॉफी के हिसाब से शुद्ध और पवित्र पैसा उसकी ताकत बहुत बड़ी है, और जो अपवित्र पैसा है वो तो जैसे आएगा वैसे जाएगा। आप जिस तरह से कमाए उसी तरह से पैसा जाएगा, वो आपको नुकसान भी करेगा। मगर ये फिलोसॉफी की बात ऐसी है कि लोग सब बात करते हैं मगर आचरण में मुकने का, टू बिहेव लाइक दैट इज नॉट वेरी इजी। आज तक मैंने देखे हैं कि बहुत सारे ट्रस्टीज जो फिलोसॉफी के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी लेक्चर देंगे, बहुत अच्छी बातें करेंगे, मगर उनको 2 नंबर का डोनेशन मिलेगा तो फट से ले लेंगे। और जो दूसरे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की बात अगर एक बाजू रखे, मेरा खुद का अनुभव है कि मैंने तो जब से चैरिटी लिया, जब 30 साल से सोशल सर्विस काम किया, तो मैं कभी भी 2 नंबर का पैसा नहीं लिया। प्लस मैं लोगों के पास जाके उनको पुश करके, घबरा के या तो शर्मा के पैसा मांगना, ये भी नहीं करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर लोगों ने डोनेशन दिया अच्छी बात है, नहीं दिया कोई बात नहीं। मगर प्योर पैसा होने के कारण इतने बड़े लाभ मुझे हुए हैं कि ये मेरे अभी अनुभव की बात हो गई। किसी के पास 100 करोड़ रुपया है, मुझे उसकी कोई पड़ी नहीं है, मेरा काम हो रहा है, बस बात खत्म हो गई। मेरा काम अगर 100 रुपये में होता है, लाख रुपये में होता है, आई एम हैप्पी विद दिस, आई एम नॉट कंसर्न विद 100 crores of rupees। यहाँ बात आई अनुभव की, और अनुभव से विश्वास होता है। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, मैंने बोला कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, मैं खाली प्योर प्रैक्टिस करूंगा। उसके ऊपर जो मुझे अनुभव हुए, वो अनुभव से मुझे विश्वास हुआ। तो पतंजलि जी ये कहते हैं कि मैं तो ये आपको अष्टांग योग देता हूँ। अष्टांग योग मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, यही प्रिंसिपल्स है। कोई भी धर्म वाला आदमी उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता है। मैं आगे इसमें ज्यादा डिटेल में बोलूंगा, मगर वो बोलते हैं कि जब आपकी कमाई, आपका जीवन व्यवहार, आपका भोजन सब कुछ प्योर होगा, तभी आपका मन शांत होगा। जब भी मन शांत होगा तभी आप साधना कर सकोगे। जब आप साधना में स्थिर बैठ सकोगे तभी आप मेडिटेशन की हाईएस्ट लेवल पर आप पहुंच सकोगे, और वो पहुंचोगे तभी आपको सिद्धि होगी। अभी मैं ये बोलूं कि आपको प्योर रहना है तो कोई उसमें आर्ग्यूमेंट करेगा ही नहीं, सब बोलेंगे हाँ बराबर है। कमाई भी प्योर होनी चाहिए, खाना भी पौष्टिक होना चाहिए, हमारा व्यवहार भी प्योर होना चाहिए। मगर जब भी लाख रुपया मिलने की बात आई तो प्रिंसिपल्स एक बाजू छोड़ दिया, और जो अपने को कन्वीनियंट लगता है, जो प्रैक्टिकल लगता है, वो हमने कर लिया। पतंजलि जी आगे जाते हैं, करना, कराना और अनुमोदन देना, ये चीज हमारे यहाँ तो बहुत फेमस है। जो भी लोग थोड़ा भी फिलोसॉफी जानते हैं, ये सब जानते हैं। पतंजलि जी ने पूरा उसके ऊपर श्लोक लिखा है कि जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं इलस्ट्रेशन देके समझाता हूँ हर एक चीज, कोई अपने ऊपर मत लीजिए, खाली ये तो एक कंसेप्ट समझाने की बात है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो खुद की कमाई पर इनकम टैक्स नहीं भर रहा है, ठीक है, तो उसका करना ही गलत हो गया, ठीक है। वो अपने क्लाइंट को समझा रहा है कैसे वो गलत तरीके से इनकम टैक्स नहीं भरे, ओके। रेगुलर लीगल टैक्स प्लानिंग करे वो एक अलग है, और हवाला वगैरह करके टैक्स को अवॉइड करे वो चीज अलग है। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो गलत तरीके से क्लाइंट का टैक्स बचाया वो हुआ कराना। फिर तीसरी बात है अनुमोदन देना। अनुमोदन मतलब कि टू प्रेज। एक आदमी धनी है, सब लोगों को पता है कि इसने पैसा गलत तरीके से कमाया है, उसने कायदा का भंग किया है, और सभी कायदे का भंग करके, लांच रिश्वत करके उसने पैसा इकट्ठा किया है, ठीक है। फिर भी लोग उसके गलत नहीं मानते, वो आज की तारीख में धनी है ना, तो उसको प्रेज करेंगे। उसके पास ये साधन सिद्धि है, उसका बहुत बड़ा घर है, उसके पास अच्छी से अच्छी गाड़ियां हैं, तो बस वो उसकी सब दोष हम भूल जाते हैं। मगर पतंजलि कहते हैं ये भी एक पाप है। किसी की गलत कमाई का आप अनुमोदन कर रहे हो, और कमाई के प्रदर्शन का भी आप अनुमोदन कर रहे हो, तो वो भी गलत है। तो करना, कराना, अनुमोदन देना, तीनों गलत काम नहीं करना है। हमें शुद्ध काम करना है। किसी को अगर मदद करनी है तो शुद्ध काम में ही मदद करनी है, और किसी को अनुमोदन देना है तो खाली शुद्ध काम को अनुमोदन देंगे। अगर कोई गलत कर रहा है
तो उसको फुगट का प्रेज करने के लिए, उसका बखान करने के लिए उसको प्रेज मत करो। गलत कर रहा है तो या तो चुप रहो, नहीं बोल सकते तो चुप रहो, अगर हो सकता है तो उसको स्पष्ट बता दो, भैया आप ये गलत कर रहे हो। जहां नहीं बता सकते, ऐसे रिलेशन नहीं है कि आप बता सको, तो चुप रहो। तो पतंजलि स्पष्ट कहते हैं कि मैं आपको ये प्रिंसिपल्स देता हूं, ये प्रिंसिपल्स आपको अपने जीवन में उतारना है। आप अपने जीवन में उतारोगे, आप अपना जीवन ये इसी तरह से जियोगे, तो आपको ये मेडिटेशन करने का अधिकार होगा। जब तक आपका जीवन शुद्ध नहीं है, आपकी कमाई शुद्ध नहीं है, आपका खाना पीना व्यवहार शुद्ध नहीं है, तब तक आप मेडिटेशन के अधिकारी नहीं हो। अभी आप देखो कि इतने सारे कमर्शियल क्लासेस जो चल रहे हैं मेडिटेशन के ऊपर लोग लेक्चर देते हैं, वो शुद्धता की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। जो शुद्धता की बात नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट इन सर्च ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ। Patanjali is meant for people who are very seriously in search of ultimate truth. बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया ये सच की, ट्रूथ की बात अपने पास रखो, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो एकदम बराबर है। हाँ, उसके साथ चर्चा दलील भी नहीं करने की, उसको समझाने का भी प्रयत्न नहीं करना। मैं कभी किसी को समझाने का प्रयत्न नहीं करता हूँ कि यू गो इन सर्च ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज 100% an individual matter, a subjective matter. If a person wants to search for truth, he will go for truth and truth will come to him. ये परमहंस योगानंद ने एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, अगर आपने किसी ने पढ़ा है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब आपको गुरु की सर्च रहेगी, जब आपका दिल व्याकुलता से गुरु के लिए पुकारेगा, तो गुरु खुद आपके सामने आके रहेगा। शिष्य को गुरु को सर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी, भगवान आपके पास भेज देगा। इसी तरह से जब एक इंसान सत्य की खोज में व्याकुल हो जाएगा, अरे बहुत सारे लोग हैं कि जो धन कमाने में व्याकुल है, या तो जो चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी लोग हैं, उनके कार्यकर लोग हैं, वो सेवा करने में व्याकुल है, ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। मगर जब भी आपका दिल कहेगा कि अभी आपको अल्टीमेट ट्रूथ चाहिए, तो अल्टीमेट ट्रूथ खुद आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। उसके लिए क्या मेहनत करनी, क्या प्योरिटी करनी, वो सब पतंजलि जी ने समझाई है। मैं एकदम डीप सब्जेक्ट में थोड़ा चला गया। लेट मी कम बैक टू लिटिल मोर प्रैक्टिकल, बट ऑन दिस सब्जेक्ट एनीबडी वुड लाइक टू से एनीथिंग? द प्योरिटी ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ, that is most important. That is what I have elaborated here or emphasized here. Okay, I'll go back to some history because मेरे हिसाब से, ये मेरा मानना है, ये अहंकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर हिंदुस्तान में हजारों साल के पहले से लोगों ने आध्यात्मिक अभ्यास किया है। वो आध्यात्मिक अभ्यास में उनको जो सत्य लगा, वो उन्होंने अपने अपने निबंध लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, वेद लिखा है, बहुत सारी चीजें लिखी हैं। ये सब जो चीजें हुई है, तो पहले के जमाने में भारत में कहते थे कि इतना एस्टैब्लिश्ड कोडिफाइड धर्म नहीं था। बहुत सारे अपनी अपनी तरफ से लोग रिसर्च करते थे, रिसर्च मतलब साधना करते थे, मेडिटेशन करते थे, और उनको जो सही लगा वो उनके जो भी सुनना चाहते थे वो कहने को गए। वो कोई पब्लिसिटी नहीं करते थे अपनी कि भैया आओ और मेरी बात सुनो, मगर जिन्होंने सुना उसको फायदा हुआ। तो ये जमाने में अंग्रेजी में एस्थेटिक बोलते हैं, हम अपनी भाषा में साधु बोलते हैं। तो बहुत सारे साधु थे और साधु लोग अपनी अपनी तपस्या करते थे, और यहाँ इन्होंने टेक्निकल टर्म यूज किए, वो श्रमण लोग थे। श्रमण मतलब साधु, ठीक है। अच्छा, वो साधु लोगों में कदाचित सबसे पहले ये हुआ सांख्य योग, सांख्य धर्म। वो कपिल मुनि ने कहा है, ऐसा लोग मानते हैं। मगर कपिल मुनि ने क्या कहा, अभी आप सबको शायद ये तो पता है कि वो जमाने में भारत में तो लिखाई नहीं होती थी, पेपर का कोई शोध नहीं हुआ था। तो जो भी होता था वो एक, हमारे यहाँ एक आर्ट डेवलप हुई कि हर एक चीज को प्रेसिस बना के बोलो। प्रेसिस मतलब बहुत छोटे से छोटे शब्दों में कह दो, कम से कम शब्दों में कह दो। जैसे कि मुंडक उपनिषद है, जिसे शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य ने कहा है
कि वो सबसे महान, सबसे इंपॉर्टेंट मुंडक उपनिषद है। हाँ, तो मुंडक उपनिषद 1.5 पन्ने में पूरा हो जाता है, और पन्ना वो भी क्या, छोटी साइज के बुक का पन्ना। हाँ, 14 श्लोक है, 14 श्लोक में पूरा उपनिषद पूरा हो जाता है। 14 होगा 16 होगा मुझे याद नहीं है, मगर बहुत ही छोटा है। अच्छा, ये प्रेसिस हो गई, तो इसके लिए गुरु को अपने शिष्य को याद कराने के लिए वो अनुकूल हो गया, शिष्य भी उसको रट सकता है। उसके साथ में हमारे यहाँ छंद डेवलप हुए, और जो भी हमारे काव्य है, जो भी अपना रिलीजियस लिटरेचर है, स्पिरिचुअल लिटरेचर, सब पोएट्री में है। वो क्यों पोएट्री में? इतना बड़ा महाभारत जो 1 लाख श्लोक का बना हुआ है, और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत है, सबसे बड़ा रिलीजियस और स्पिरिचुअल ग्रंथ महाभारत है। वो पूरा का पूरा 1 लाख श्लोक की पोएट्री है। पोएट्री है, उसको छंद से गाओ तो उसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में याद रह जाएगी, और फिर वो गुरु से शिष्य, शिष्य से उसके शिष्य, उसके शिष्य, ऐसे हजारों सालों से चला आ रहा है। तो जब कपिल मुनि ने सांख्य धर्म के ऊपर या सांख्य योग के ऊपर विचार किए, तो वो विचार का कोई भी सबूत आज की तारीख में अपने पास नहीं है कि ये कपिल मुनि ने कहा, मगर ये है कि आज से 1000 साल पहले अच्छे अच्छे ऋषि मुनि हो गए, जिन्होंने सांख्य योग के ऊपर बहुत कुछ तपस्या की, बहुत चर्चा की, फिर उन्होंने पुस्तक लिखे। वो पुस्तक आज की तारीख में अवेलेबल है, और वो ऋषि मुनियों ने सांख्य योग के लिए कपिल मुनि को क्रेडिट दी है। तो हम कहे कि सांख्य योग कपिल मुनि ने हमें प्रदर्शित किया, मैनिफेस्ट किया, हमारे सामने रखा। उसके बाद में सेकंड है पतंजलि योग, और फिर थर्ड है वेदांत। और मैं आज थोड़ी ब्रीफली ये तीनों की ही चर्चा करूंगा, और तो बहुत सारे विचार है उसकी आज चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। सांख्य योग ये कहता है कि एक प्रकृति है और एक पुरुष है। अच्छा, अभी पुरुष का मतलब ये नहीं जो हम बोलते हैं कि मेल और फीमेल, ये नहीं है यहाँ मतलब। पुरुष मतलब आत्मा। हम आज वेदांतिक भाषा में, हिंदू धर्म में आत्मा शब्द का उपयोग करते हैं, जैन धर्म में भी आत्मा शब्द का उपयोग करते हैं, इंग्लिश में सोल बोलते हैं। पतंजलि और सांख्य कपिल मुनि उसको पुरुष बोलते हैं। एक स्त्री का जो आत्मा है उसको पुरुष बोलो, पुरुष का आत्मा है उसको पुरुष बोलो, वृक्ष में जो आत्मा है वो भी पुरुष है, और एक जानवर में, एक जंतु में जो भी आत्मा है वो भी पुरुष है। ये सांख्य योग कहता है। और दूसरा है प्रकृति। तो पुरुष जो है वो आत्मा है, वो सर्व संपूर्ण है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट इसमें नहीं बोल सकते, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसायंट है, मतलब उसको सब कुछ पता है, उसकी सब कुछ शक्ति है। वो जब प्रकृति से मिलता है और प्रकृति से मिल के जीव भाव धारण करता है, तब वो जीव भाव किसी भी रूप से आ सकता है। वो इंसान की तरह से आएगा, हाथी की तरह से आएगा, या तो ग्रास की तरह से आएगा, कोई भी रूप से आएगा। वो उसका एक शरीर हुआ। वो शरीर मतलब प्रकृति और पुरुष दोनों साथ में मिलके हमारे सामने है, और फिर अपना अपना वो खेल खेलते हैं। सांख्य धर्म में ईश्वर की कोई बात नहीं है। कपिल मुनि ये कहते हैं कि आपको जो अल्टीमेट ट्रूथ चाहिए वो आप खुद जरूर ले सकते हो। आप अपना मेडिटेशन करो, आपको मिल जाएगा, उसमें धर्म की या ईश्वर की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सांख्य योग है। गीता में 2nd चैप्टर जो है, दूसरा अध्याय है, वो सांख्य योग का है। कृष्ण भगवान ने सांख्य योग के ऊपर बहुत सारा महत्व दिया हुआ है। पतंजलि योग सूत्र है, वो 95% सांख्य योग से मिलता हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि पतंजलि जी और सांख्य कपिल मुनि जी के विचार एक तरीके हैं, मगर पतंजलि ने ईश्वर का बहुत महत्व दिया है। उन्होंने ईश्वर का महत्व, ईश्वर है, ईश्वर का महत्व है, और इंसान अगर ईश्वर का शरण ले लेवे तो उसको अल्टीमेट ट्रूथ पाने के लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड, इट विल बी इजी टू गेट द अल्टीमेट ट्रूथ इफ यू सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड। मगर यहाँ पतंजलि भी यही कहते हैं कि जितने आत्मा है उतने पुरुष है। मतलब अगर दुनिया में देयर इज इन्फिनाइट लाइव्स, ओके, उसका कोई हिसाब नहीं हो सकता है,
करोड़, अरब और अरब के आगे जो भी संख्या होगी वो संख्या से वो संख्या को गुणाकार करो तो भी कितना होगा, उसका कोई अंत ही नहीं है। इसी के लिए हम इसको इन्फिनाइट बोलते हैं। तो पतंजलि कहते हैं कि इस संसार में इन्फिनाइट पुरुष है, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति एक है, पुरुष अनंत है, और वो पुरुष और प्रकृति जब मिलते हैं तभी संसार होता है। और वो संसार से मुक्त होने के लिए, वो संसार से अलग होके अपना सिद्ध स्वरूप प्राप्त करने के लिए क्या करने का, उसके लिए पतंजलि योग सूत्र ने पूरा दिया है अपना सूत्र। पतंजलि जी ये नहीं कहते हैं कि ईश्वर ने संसार बनाया है, ईश्वर संसार को धारण करते हैं और ईश्वर संसार को नष्ट करेंगे, ऐसी जो हिंदू धर्म की कल्पना है उसको पतंजलि योग सूत्र में बिल्कुल महत्व नहीं दिया है। तो मेरे हिसाब से पतंजलि योग सूत्र और जैन धर्म ऑलमोस्ट 99% मिलता है, क्योंकि जैन धर्म में भी ये कहते हैं कि पुरुष है मतलब कि आत्मा है, प्रकृति है, दोनों स्वतंत्र है, दोनों एक दूसरे से कभी मिक्स नहीं हो सकते हैं। मतलब प्रकृति कभी पुरुष नहीं हो सकती है, पुरुष कभी प्रकृति नहीं हो सकता है, ये दोनों अलग अलग है। और ये संसार को बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर है मगर ईश्वर अपनी जगह पे है। ईश्वर आपको आके मदद करेगा ऐसा जैन धर्म में नहीं मानते हैं। जैन धर्म बोलते हैं कि आप अपना प्रयत्न करो, आपको जो चाहिए वो आपकी आत्मा में पूरी शक्ति दी हुई है नहीं, आपकी आत्मा में है, बाय द वेरी नेचर इट इज देयर। तो यहाँ सांख्य योग, पतंजलि योग और जैन धर्म, ये तीनों तो बहुत तरीके से एक दूसरे के मिलते आते हैं। मतलब उनके विचार, उनकी फिलोसॉफी, मेटाफिजिक्स, वो सब सरीखा है। अभी पतंजलि में योग सूत्र में हम पतंजलि को ओरिजिनल पर्सन मानते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, उसके बाद बहुत सारे साधु हैं जिन्होंने उसके ऊपर प्रवचन दिए हुए हैं। तो ये हुआ, खाली डिफरेंस इतना ही है कि किसने अपना सिद्धांत प्रजा के सामने रखा, वही एक फर्क है। बाकी जो विचार है बहुत तरह से एक तरह से मिलता हुआ है। ये तीनों विचार से वेदांत में विचार एकदम अलग है। वेदांत और हिंदू धर्म भी अलग है। हिंदू धर्म में भगवान का नाम दिया है विष्णु, शंकर और ब्रह्मा, और ये तीनों मिलके ब्रह्मा संसार की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु संसार को चलाते हैं और शिव संसार का संहार करते हैं या तो उसको खत्म करते हैं। ये मान्यता वेदांत में नहीं है। एक भी उपनिषद में विष्णु का नाम नहीं है, एक भी उपनिषद में राम भगवान, कृष्ण भगवान, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक रुद्र शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, मगर वो रुद्र को कुछ लोग बोलते हैं वही शंकर भगवान है। ठीक है, एक्चुअली मैं भी यहाँ उसके ऊपर डिबेट नहीं करना मांगता हूँ, मैं तो खाली एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहा हूँ, एक बेस बना के देता हूँ कि अलग अलग मान्यताएं हैं और ये अलग अलग मान्यताएं हैं, उसके ऊपर से फिर हम आगे चलेंगे। वेदांत ये कहता है, वेदांत में अद्वैत का सिद्धांत है, तो वो बोलते हैं कि ये पूरा विश्व एक चैतन्य का बना हुआ है। देयर इज ओनली वन ब्रह्मन, ब्रह्मन बोलो, चैतन्य बोलो, आप जो भी बोलो, और वो हर एक चीज में समाया हुआ है। ये प्रकृति भी उसी की बनी हुई है। वो एक जैसे बोलते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारा रूपक देते हैं। मैं यहाँ एक डाइग्रेशन करता हूँ कि बहुत सारे आज का जो यंग जनरेशन होता है वो हिंदू धर्म से अलग हो जाता है, उसको हिंदू धर्म पसंद नहीं है। उसका क्या कारण है कि वो बोलते हैं कि इसमें तो बहुत सारी अतिशयोक्तियां दिया है, ऐसे क्या हो सकता है। और इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हिंदू धर्म में एक वार्ता है जो इसको माइथोलॉजी बोलते हैं, कि एक ऋषि बहुत सारी तपस्या करते थे। उनकी तपस्या इतनी सारी हो गई कि इंद्र को उसका शासन डोलने लगा। इंद्र को डर हुआ कि ये ऋषि आके इंद्र बन जाएंगे। ओके, तो इंद्र अपना वज्र लेके ऋषि को मारने के लिए दौड़ा। अभी ये ऋषि तो सामान्य तरह से शांत होते हैं, उसी को किसी को कोई परवाह नहीं है, मगर जब इंद्र ने ऋषि को सताया तो ऋषि ने एक राक्षसी खड़ी कर दी। वो राक्षसी इतनी विशाल थी कि उसका होठ, खाली लिप्स, लिप्स जो थे वो पृथ्वी से लेके आकाश तक का था। वो राक्षसी का नाम था मद, और वो राक्षसी को देख के इंद्र भाग गया।
अभी ये मॉडर्न जनरेशन वाला बोलेगा उसका अगर खाली होठ पृथ्वी से आकाश तक था तो बाकी का शरीर किधर गया? हाँ, वो तो अच्छा, वो बाकी का शरीर नहीं हो सकता है, मतलब ये वार्ता गलत है। अगर ये वार्ता गलत है तो हिंदू धर्म ही गलत है, ऐसा लोग बोलते हैं। मगर इसके पीछे समझना है कि ये सब पौराणिक वार्ता है, जो माइथोलॉजी है वो सब पुराण में है। हाँ, और पुराण में इन्होंने कल्पना शक्ति को बिल्कुल लिबर्टी दे दी है, कहाँ भी जाओ। और कल्पना शक्ति में, माइथोलॉजी में जानबूझकर अतिशयोक्ति लाई है। वो अतिशयोक्ति इसलिए लाई है कि साधक या भक्त जब वो उसका अभ्यास करे तो वो समझ लेवे कि इसमें जो वार्ता कही है, वार्ता का बिल्कुल महत्व नहीं है। वार्ता के पीछे जो लेसन है, उसका जो थीम है, उसमें जो प्रिंसिपल बताया वो आप समझो, उसी का महत्व है। तो वार्ता क्या थी? ऋषि ने क्या सामने रखा? मद। मद मतलब अहंकार। अहंकार इंग्लिश में ईगो बोलते हैं। हाँ, ईगो ऐसी चीज है कि जिसके भी दिमाग में ईगो पेश हो गया, उसका संपूर्ण सर्वनाश होना निश्चित है। अगर इंद्र को अहंकार हुआ कि मैं बहुत बड़ा एंजल हूं, मैं सभी देवों का राजा हूं, तो इंद्र का भी सर्वनाश हो जाएगा। तो मद से आप डरो, अहंकार से डरो, ये मैसेज उसमें दिया हुआ है। तो हिंदू धर्म में रूपक देने की, रूपक का अंग्रेजी क्या हो सकता है? सिंबल्स। अपने यहाँ जो मूर्ति है वो भी सिंबल है। अगर महावीर भगवान की या कृष्ण भगवान की मूर्ति है, हम जाके मूर्ति के सामने प्रणाम करते हैं, तो वो पत्थर की मूर्ति को हम प्रणाम नहीं करते हैं। उसके पीछे जो भगवान का संदेश है, भगवान की जो हमारी मान्यता है, वो भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तो ये सिंबोलिज्म एक बार समझ लिया और अतिशयोक्ति को अतिशयोक्ति अलंकार समझ के एक बाजू रख दिया, तो फिर हमारा दिमाग मेन प्रिंसिपल के सामने जाएगा, फिलोसॉफी के ऊपर जाएगा, बाकी सब चीजों में नहीं जाएगा। तो सांख्य योग, पतंजलि योग, जैनिज्म और वेदांत, उसके सिवा बहुत सारे धर्म है, बुद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म वगैरह, मगर उसकी बात नहीं करते हैं क्योंकि फोकस ये है कि पतंजलि जी क्या बता रहे हैं। पतंजलि जी ये बता रहे हैं कि पुरुष और प्रकृति अलग है, पुरुष खुद सर्वशक्तिमान है, आज की तारीख में वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, तो वो कोई भी शरीर धारण करके है, वो जब साधना करेगा तो साधना करके अंत में वो अपना सिद्ध स्वरूप वापस उसे मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ आई एम contrasting Patanjali from other philosophies and saying that this is Patanjali. Again, I can take a pause if anybody wants to comment anything here. ओके, अगर आपको किसी को कुछ भी कहना है तो जरा अपना हाथ रेज कीजिए और कहीं कुछ भी कहिए। मैं अभी पतंजलि से सीधा गीता पर आता हूँ। गीता ये हिंदुस्तान की पूरी दुनिया को सबसे बड़ी भेंट है। अगर आपने, मेरे ख्याल से मोर और लेस सभी ने गीता तो पढ़ी होगी, जिसने नहीं पढ़ी है वो अभी भी पढ़ ले। गीता इज सुपरलेटिव। मगर आपने ये सोचा है क्या, गनेरी वाला जी, आप गीता के ऊपर बहुत कुछ लिख रहे हो। गीता के 18 अध्याय है और 18 अध्याय का नाम योग है। विषाद योग से शुरू होता है पहला योग, पहला चैप्टर उसका विषाद योग है, क्योंकि अर्जुन को बहुत दुख हो रहा है कि ये लड़ाई मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे ही सगे संबंधी के साथ में मैं क्यों लड़ाई करूं। उसका उसे विषाद हो रहा है, उसको बहुत बड़ा दुख हो रहा है, तो उसको विषाद योग नाम दिया है। दूसरा चैप्टर है सांख्य योग। हाँ, और कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों शब्द गीता में आए हैं। हाँ, तो ये जब 18 अध्याय को कृष्ण भगवान ने योग का नाम दिया है और उसमें 16वां अध्याय है कि आसुरी संपत्ति किसे कहते हैं, दैवी संपत्ति किसे कहते हैं। उसमें कृष्ण भगवान भी यही चीज पर आ गए हैं कि आप कंप्लीट शुद्धि करो। शुद्धि मतलब खाली बोलने में नहीं, कमाने में, खाने में, आपके व्यवहार में, हर एक जगह पे आपकी शुद्धि होगी तो आप गीता समझने के अधिकारी है। ये हो सकता है आपने गीता पढ़ ली, बहुत सारे लोगों ने गीता रट भी ली, आप उनको पूछो तो वो 18 अध्याय बोल भी सकते हैं, बिना पुस्तक में देखे हुए बोल सकते हैं। मगर अगर उनकी कमाई अशुद्ध है तो वो गीता समझने के अधिकारी नहीं है।
अधिकारी नहीं है, उस शब्द पर मैं फिर से आता हूं। जैसे मैंने पहले कहा कि कबीर जी ने कहा राम शब्द के 4 अर्थ है। हाँ, तो राम भगवान दशरथ के बेटे थे, वो सबको पता है। उससे आगे 99% से ज्यादा लोग उससे आगे बढ़ते ही नहीं है। उन्होंने गीता भी पढ़ ली होगी, बहुत सारे धर्मशास्त्र पढ़ लिए होंगे, मगर उससे आगे नहीं जाते हैं। जब कहा कि राम तो हरेक के हृदय में बैठा है, हाँ, तो उसका मतलब कि राम भगवान हिंदू के हृदय में, मुस्लिम के हृदय में, क्रिश्चियन के हृदय में, एक कुत्ते के हृदय में और एक जानवर के हृदय में भी है। तो ये मानने के लिए ज्यादातर हिंदू धर्म वाले तैयार नहीं होंगे। उसके ऊपर बहुत सुंदर वार्ता है कि जब आदि शंकराचार्य, उनको लगा कि मैं ज्ञानी हो गया, हाँ, तो शंकर भगवान ने उसको पाठ सिखा दिया। आदि शंकराचार्य सुबह स्नान करके जब जा रहे थे तो उनके सामने एक चांडाल आके खड़ा हो गया और चांडाल के साथ 3-4 कुत्ते थे। हाँ, तो जो पवित्र, अपने आप को पवित्र हिंदू मानते हैं, वो कुत्ते को एक गिरी हुई आत्मा मानते हैं। कुत्ते शब्द का प्रयोग ही एक अपमानजनक प्रयोग है, और चांडाल उसके सामने आ जाएगा। तो आदि शंकराचार्य ने कहा चल दूर हट, दूर हट। तभी वो चांडाल ने उनके साथ जो चर्चा वार्ता की, वो उसके चर्चा वार्ता में मैं अभी नहीं जाऊंगा, मगर चांडाल ने कहा कि अगर आप आत्मा की बात कर रहे हो और आप जब कह रहे हो कि आपकी आत्मा और मेरी आत्मा एक है, तो आप मेरे शरीर के सामने देख रहे हो कि आप किसके सामने देख रहे हो? आप मेरा अपमान क्यों कर रहे हो? तभी शंकराचार्य जी को एकदम ख्याल हुआ कि ये तो जब मैंने गलत कर दिया, मैं किसी भी इंसान का अपमान करूं वो तो गलत है। शंकराचार्य जी वो चांडाल के पैर लगे, उसको प्रणाम किया। तभी शंकर भगवान ने अपना खुद का स्वरूप बता दिया कि मैं शंकर हूं, मैं तुझे उपदेश देने के लिए आया था, तू किसी को अपने से गिरा हुआ मत मान। ये जब मान्यता आती है कि कोई भी आपसे गिरा हुआ नहीं है, न कोई आपसे ऊपर है, सब समान है, ओके, तो ये सही समझ हुई हिंदू धर्म की। और ये सही समझ पतंजलि भी बताते हैं कि आप सभी को प्रेम करो। सत्य और प्रेम, ये पतंजलि का बिगिनिंग में आ जाता है। सभी को प्रेम करोगे, और प्रेम कैसे करोगे? ऐसा नहीं कि मेरे पास 100 रुपया है, मैं किसी को 10 रुपया दान कर रहा हूं, मैंने प्रेम जताया। ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो जैसे माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं और बच्चे अपने माँ बाप से करते हैं, भाई भाई से करते हैं, इसी तरह से सबको प्रेम करो। आप किसी को दान दिया तो किसी के ऊपर उपकार नहीं किया है, आपने चाहा, आपने किया। उस आदमी का नसीब था तो उसको दान मिला। ये हिंदू धर्म बहुत स्पष्ट कहता है। जैन धर्म भी ये कहता है कि आप किसी की मदद नहीं कर सकते हो, हर एक इंसान अपना अपना नसीब लेके आया हुआ है। तो आप जब दान करो तो ये ईश्वर का आप आभार व्यक्त करो कि मुझे ये चांस मिला कि मैं किसी को मदद कर सकता हूँ। बाकी वो इंसान का जो होगा सो होगा। इधर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मेरी लाइफ का बताता हूँ। एक समय था 1987 से शायद 95 तक, मैं सुबह 4 बजे उठ के, मतलब नवंबर दिसंबर में, अपने कंधे पर ब्लैंकेट्स डाल के बंबई की गलियों में घूमता था। और जो गरीब आदमी फुटपाथ पर सोता हुआ दिखेगा, जिसके पास ओढ़ने का नहीं, उसके ऊपर छत पर झुपड़ी भी नहीं है, उसको मैं ब्लैंकेट ओढ़ा देता था। तो उसको ब्लैंकेट कवर करके मैं चले जाता था। और फिर ईश्वर की कृपा से पहले मैं 50 ब्लैंकेट से शुरू किया, फिर 100 किया, फिर 500 किया। तो 500 ब्लैंकेट खुद कंधे पर लेके जाके डिस्ट्रीब्यूट करना वो प्रैक्टिकल नहीं था, तो मैं टैक्सी में बैठ के जाता था। तो रात को मतलब 3-4 बजे निकल के टैक्सी हायर करके उसमें ब्लैंकेट 50 ब्लैंकेट रख के मैं हाजी अली से लेके कहीं कहीं बहुत सारी जगह पे घुमा हूं। वो एक टैक्सी ड्राइवर वो देख के बहुत खुश हो गया, और टैक्सी ड्राइवर ने मुझे कहा ना, एक्चुअली हम 4 बजे से 6 बजे तक सब ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करके 6 बजे कोई एक गल्ले पर हम दोनों साथ में चाय पीने को बैठ गए। तो टैक्सी ड्राइवर मेरे से खुश हो गया, बोला साहब आप तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मगर आपको पता है क्या कि वो जिस आदमी ने आपका ब्लैंकेट स्वीकार किया, उसने आपके ऊपर उपकार किया। हो सकता है कि वो आदमी आपका ब्लैंकेट स्वीकार नहीं करेगा, ये भी हो सकता है कि वो ब्लैंकेट फेंक के चला जाएगा। और जब उठेगा, आपने तो सोते हुए आदमी को ब्लैंकेट दे दिया, वो जब उठेगा तो आपका ब्लैंकेट फेंक के चले जाएगा। ये भी हो सकता है कि वो ब्लैंकेट बेच देगा। जिसने आपका ब्लैंकेट स्वीकार किया उतना ही पुण्य आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो
यहाँ बात है कि आपका ब्लैंकेट कौन स्वीकार करेगा। जब आपका ब्लैंकेट आपने शुद्ध कमाई से खरीदा हुआ है, प्रेम से दिया हुआ है, आप शुद्ध प्रेम से दिया हुआ, आपने कोई अहंकार अपने दिल में नहीं है, आप बस किसी का दुख आप देख नहीं सकते हो, वो उसका दुख मिटाने के लिए आप 2 कदम बाहर चले, बस ये जरूरी है। यहाँ पर बात आती है, मैं थोड़ा अभी ये सेवा के क्षेत्र में जो अपने फिलोसॉफी ग्रुप में हमने बहुत सारी चर्चा की है उसके लिए बात करता हूँ। अद्वैत समझने की, अभी ये वेदांत की बात है, अद्वैत मेरे हिसाब से मैं वेदांत में मान रहा हूँ, पतंजलि वगैरह सब मैंने अभ्यास किया है, मगर मैं मानता हूँ वेदांत जो इसको बोलते हैं सनातन सत्य, तो वो सनातन सत्य में मैं मानता हूँ। और वो सत्य मानने का अधिकारी कौन है, उसको समझने का अधिकारी कौन है? हाँ, एक आदमी जिसके दिल में दूसरे के ऊपर बिल्कुल दया माया नहीं है, जिसके ऊपर किसी के ऊपर वो समझ, मैं एक्सट्रीम बोल रहा हूँ, किसी के ऊपर जुल्म भी कर सकता है, वो कभी भी वेदांत नहीं समझ सकेगा, क्योंकि वेदांत का तो फंडामेंटल प्रिंसिपल अद्वैत है। वो बोलता है कि ये पूरी दुनिया में जितने जीव है, मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी जीव है और पूरे यूनिवर्स में जितने भी जीव है, सभी एक चैतन्य के बने हुए, तो मैं और दूसरा जीव एक ही है, खाली हमारे मैनिफेस्टेशंस अलग अलग है। तो ये जानने का पहला आपका स्टेप, आपका प्रथम पगला क्या होगा कि आप दूसरे का दुख देख नहीं सकते हो, दूसरे का दुख देख नहीं सकते हो, आप खड़े हुए उसका दुख दूर करने के लिए, ये आपका पहला पगथिया हुआ, पहला स्टेप हुआ। और जब आपने ये शुरू किया तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो। फिर क्या होता है कि आपको कहां से 2 नंबर का डोनेशन मिल गया, तो आपको एक अभिलाषा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं, बड़ा से बड़ा काम करूं, तो ये एक बड़ा अभिलाषा, ये भी आपके योग मार्ग में विघ्न है। विघ्न मतलब ऑब्स्टेकल है, डिफिकल्टी है। ज्यादा से ज्यादा करने के लिए आप कुछ गलत कर ले तो गलत बात है, वो नहीं कर सकते हो आप। जो भी आपको सेवा करनी है वो भी 100% शुद्ध होनी ही चाहिए, तो ही आप सेवा कर सकते हो, नहीं तो सेवा छोड़ दो। जब ट्रस्टी लोग बोलते हैं कि भाई मैं समझो 100 लोग को खाना खिला सकता हूँ, इतनी मेरी ताकत है, मगर अगर मुझे किसी के पास से डोनेशन मिल गया, वो आदमी चाहे स्मगलर हो, मुझे क्या है, वो जब मुझे पैसा दे रहा है तो मैं 100 के बदले में 500 आदमी को खाना खिला सकूंगा। पतंजलि ये चीज को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, वो बोलते हैं बिल्कुल मान्य नहीं है। आप सेवा करो, ठीक है, वो आपकी बात है, मगर अगर आपको सत्य की शोध है, अगर आपको ईश्वर की शोध है, तो ये नहीं चलेगा। आपका जो भी प्रयोग है वो, मैं तो हर एक सेवक को कर्मयोगी मानता हूँ। मित्तल पटेल कर्मयोगी है, अतुल अंबावत कर्मयोगी है, सुजाता कर्मयोगी है, ये सब कर्मयोगी है। विनायक लोहानी, इतने सारे भारत देश में हजारों लोगों की सेवा कर रहे हैं, मगर वो कर्मयोग में अगर सत्य और प्रेम मिला, 100% शुद्धि और प्रेम मिला, तो वो कर्मयोग है। और वो कर्मयोग कृष्ण भगवान ने अपने दूसरे अध्याय में, 2nd चैप्टर सांख्य योग में समझाया है कि कर्मयोग आप करो और उसके फल की अपेक्षा मत करो, तो आपको अल्टीमेट ट्रुथ मिल जाएगा। आप 18वां अध्याय समझ लो, तब तक आपको सब सत्य मिल जाएगा। मगर वो कैसे समझोगे? अगर आप शुद्धता के आग्रही नहीं है तो वो समझोगे नहीं। मैं फिर से अधिकार की बात पर आता हूं कि जो भी आदमी ये माया के 6 अट्रैक्शन टेम्पटेशंस बताए, वो 6 टेम्पटेशंस में किसी भी टेम्पटेशन में फंस गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सर, ये किसी भी चीज में फंस गया तो वो वहां अटक जाएगा, उसकी आगे स्पिरिचुअल प्रगति नहीं हो सकेगी। पता नहीं। हाँ बोलो प्लीज। यस। મને તમે કહ્યું કે કામની બાબતમાં એષણા અભિલાષા રાખવી કે વધારે કાર્ય કરવું, એમ તમે કહો છો એ યોગ્ય નથી. અહીં અનુદાનની વાત સેકન્ડ છે કે એનો માર્ગ કયો છે સાચી રીતે, અને આપણે જેને શુદ્ધ અનુદાન કહીએ છીએ એ આપણી પાસે આવે છે ને આપણે એનાથી તો કામ કરીએ છીએ, અને આઈ થિંક શુદ્ધ જ અનુદાન છે, આપણને મળવા વાળું ડોનેશન શુદ્ધ જ છે, પવિત્ર ભાવ સાથે આવેલું છે. અને એ વખતે આપણે એ એષણા રાખીએ, ધારો કે 10 વસાહતમાં કામ કરીએ છીએ અને 10 લોકોના કલ્યાણમાં આપણે ક્યાંક નિમિત્ત બનીએ છીએ, અને એક ભાવના એ થાય કે આપણે 50 વસાહતમાં 50 લોકોના કલ્યાણમાં નિમિત્ત બની શકે, તો એ અભિલાષા રાખવી
પવિત્ર અને શુદ્ધ જ માર્ગ છે. તો એ અભિલાષા રાખવી જોઈએ કે ના રાખવી જોઈએ? તમે જે કહો છો એમાં બરાબર જવાબ આપો. પણ એની પહેલા હું બધા મિત્રોને એક મિત્તલ પટેલને માટે એક બ્રીફ ઇન્ટ્રોડક્શન આપું છું. મિત્તલને હું 2010 ના વર્ષમાં, सॉरी, मित्तल पटेल को मैं 2010 में पहली बार मिला. आज से 10 साल से ज्यादा हो गया. पहले दिन उसको देख के मैं बोला कि ये लड़की ये भाव में मोक्ष प्राप्त कर सकती है, क्योंकि उसका सेवा के बारे में कमिटमेंट इतना उग्र है. जो पतंजलि बोलते हैं कि आप कुछ को जो भी करना है उसके लिए आपको एक व्याकुलता होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि मैं बैठे बैठे हो सका उतना कर लिया, नहीं हो सका तो छोड़ दिया, ये बात नहीं. मित्तल पटेल वो दूसरों का दुख देख नहीं सकती है, और देख नहीं सकने के बाद में वो घर में बैठती नहीं है, उसका दुख दूर करने को निकल पड़ती है, और निकल पड़ने के बाद में जो भी प्रयत्न चाहे वो कर लेती है. तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि मित्तल पटेल इज अ कर्मयोगी एंड शी इज अधिकारी टू अंडरस्टैंड द अल्टीमेट ट्रूथ. अभी ये कर्मयोग तो शुरू हुआ, फिर बाद में अष्टांग योग समझने की बात है. अष्टांग योग में बहुत सारे स्टेप्स बताए, क्योंकि मोक्ष चीज या तो अल्टीमेट ट्रूथ ऐसी तो चीज नहीं है कि चलो मैंने एक फल पेड़ से काट लिया और मिल गया. मित्तल पटेल को भी आगे बहुत काम करना बाकी है. अभी तो वो थोड़ी रुक गई है, वो जब आगे बढ़ेगी तो उसको आगे जरूर मिल सकता है. मतलब अधिकारी है, वो आगे प्रयत्न करेगी कि नहीं, वो हर एक इंसान का अपना अपना चीज है. अच्छा, अभी मित्तल जो तुमने सवाल पूछा कि ऐषणा होनी चाहिए कि नहीं, जरूर होनी चाहिए, मगर उसको मैं डिस्टिंग्विश करता हूं, और इसके लिए मैं अंग्रेजी शब्द यूज करता हूं, एम्बिशन. मुझे एक एम्बिशन है, मैं तो बोलता हूं कि आपको एम्बिशन कमाने के लिए भी होनी चाहिए. अब अगर आप ट्रस्ट में हैं, आपको लोगों की मदद करनी है, आप 100 को करो, लाख को करो, 10 लाख को करो, उसमें कोई लिमिट नहीं है. कमाना है, आपको लाख रुपया कमाना है, करोड़ रुपया कमाना है, कोई लिमिट नहीं है. खाली ये है कि जो भी मैं कमाऊंगा वो शुद्ध होना चाहिए. मेरे पास जो पैसा आएगा मेरी मेहनत का, मेरी कमाई का आएगा. दूसरे के पैसे पर मुझे कोई आकर्षण नहीं है. वो पैसा कितना भी होएगा, मुझे उसके ऊपर आकर्षण नहीं है. तो इसको एम्बिशन बोलते हैं. एम्बिशन है, मेरा एक ड्रीम है कि मुझे इतने लोगों को मदद करनी है, वो तो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है. एम्बिशन के बदले में जब ग्रीड आ जावे, लोभ आ जावे, हाँ, कि दूसरे ने कमाया और मैं उसको खींच लूं, दूसरे ने काम किया उसकी क्रेडिट मैं ले लूं, वो गलत है. तो मेरे हिसाब से मित्तल, तुम जो कर रही हो बिल्कुल अच्छा काम है. तुम जितने ज्यादा से ज्यादा जितने लोगों को मदद कर सको वो करो. हम फ्रेंड्स ऑफ धर्मपुर तुम्हारे साथ में है, और तुम्हारे साथ में अभी तो नरेंद्र मोदी से लेके बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ में है. तो तुम्हारा काम अच्छा होगा. अभी बाकी का अष्टांग योग समझ लो, कर्मयोग तुमने शुरू कर लिया, बाकी का अष्टांग योग समझ लो, बहुत अच्छी बात है. ओके, तो एम्बिशन इज गुड, ग्रीड इज बैड. ग्रीड को संस्कृत में लोभ बोलते हैं, या तो अतिलोभ बोलते हैं. जो बोलते हैं अतिलोभ पाप का मूल है. अतिलोभ नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है. अच्छी तरह से तो जो भी होगा, जितना भी होगा हम करेंगे. Now it is already 8 minutes past 6 o'clock, and we have not even started Patanjali Yoga Sutra. So I have established, I have sort of said the full background, so that understanding Patanjali Yoga Sutra should be easy for us. Now I will tell two things. One is I have requested Anandi ji, because she has written a whole book on meditation, and she is in touch with other people who are doing a lot of meditation. So I will request her to speak for 5 minutes, and then I will again come back and continue with this our study. Anandi ji, would you like to say something, please? Please. तो आपको अनम्यूट कर दीजिए. हाँ जी, हाँ हाँ, कर लिया. हाँ जी, बताइए. To begin with, big namaskar to you, and Thank you. hats off to you for all the knowledge that you have acquired, and you are continuously sharing it with people. In fact, I have not read so much of Patanjali Yoga Sutra or Advaita Vedanta or anything. By God's grace, meditation happened to me at a very young age. I met and as you correctly said, when you are ready, the Guru appears in your life, and that is exactly what happened in my case. That I met my Guruji when I was in search of, the truth. I had kind of reached
a peak of my career, and at that time I was finding a kind of vacuum inside myself, and I was in search of I knew that life is not all about eating, drinking, merrymaking, and life is something beyond what you can actually see with your eyes, hear with your ears, beyond the five senses. And that was the time when I was searching, and then by God's grace I met my guru. And as you were saying about Hetalji, that she now needs to learn Ashtanga, she needs to concentrate on Ashtanga yoga because she has already been doing lots of seva. Actually, I had, when you told me to speak a few minutes on meditation, I had kind of thought that I would share something about this, various stages of yoga. But on that, there are various stages, yama, niyama, asana, and all that. And as you correctly said, people mistake asana and pranayama to be a type of meditation. Actually, that is not meditation. That is just physical discipline, and then the discipline of your breathing. So what happens is those things aid and abet you in doing meditation, but those are not the ultimate steps towards meditation. Actually, pratyahara is watching your senses. Now, senses cannot be controlled by the mind, because when you start controlling senses, our senses are like our children. When you try to control them, they will rebel. When you try to be very strict with them, they'll rebel. At the same time, if you are lenient with them, they'll become like spoiled brat. So you have to really do kind of a parenting thing. You have to be a good parent to your child so that the child grows up to be a good human being. Similarly, with your senses also, we have to do kind of parenting. We have to go on observing our senses. And normally what happens is, in a normal human, the senses are in control of the mind. So in pratyahara, what happens is we have to reverse it. The mind should control should observe the senses instead of the senses having control over the mind. And when you constantly keep observing, then they'll, when you observe a child when he is doing mischief, after a little while the child will stop playing mischief and start behaving well. So it's exactly that's what happens with the senses also. So so that is pratyahara, and after that, in the Ashtanga yoga, it is mentioned that one should proceed to dharana. Now, what is dharana? Dharana is again observing the mind. In fact, a lot of books mention that dharana is focusing on the mind and controlling the mind. It is impossible to control the mind. Like I have also, I'm a great follower of Bhagavad Gita, the Krishna Bhagavad Gita. You had mentioned in one of your notes that there are several Gitas in the Mahabharata. Yeah, correct. Yeah. So I have been also reading I've not mastered all the verses. I don't know it by heart, but there are certain specific verses which I really like it, and I share it whenever I talk to people. There is one verse where Arjuna tells Krishna, Chanchalam hi mana Krishna pramati balavadrudam tasyaham nigraham manye vayoriva sudushkaram. So he says that it is so difficult to control the mind that it's easy to control the wind and the air, but it is difficult to control the mind because constantly there are thoughts going in and coming out. So in fact, in the scientific community, there are some researchers in Holland and Germany. They had established this institute called Institute of Biophotonics, where they had observed that there are every human is constantly emitting biophotons, emitting and absorbing, and these biophotons arise from the individual biomolecules inside of us, and those are nothing but our own thoughts. So they try to do a study where they kind of monitored all the biophoton emission, and they found that when a
a person is made to observe the thoughts, the biophoton emission comes down. So this is exactly what happens in dharana. When you start observing your thoughts, the number of thoughts that come to you comes down. So, and once you reach a stage where you find that your mind has been observing the thoughts come to you, you go to a kind of state of non-thought. And that is the time the mind merges with the consciousness. And that is the time meditation starts. So this is something which I thought I wanted to share with you all. So yeah, thank you very much. Thank you, Ji. Good. Actually, we can have probably, if everybody wants, one full session where you can probably take up a whole talk on meditation. We'll see. Okay. sure, Okay, definitely. yeah. Thank you. Asha. Now I will go back to Patanjali Yoga Sutra. Just a moment. Just give me one moment. Okay. I have got at least 6 or 7 books on Patanjali Yoga Sutra. One second. And the 2 books which I have liked maximum, I will tell you. One is in Gujarati, Pantajal Yoga Sutra. This is published by Sastu Sahitya from Ahmedabad. It's extremely good. In fact, whenever we talk of religious or spiritual literature, those who can read Gujarati, this Sastu Sahitya is the best publisher. And those who can read Hindi, Gita Press Gorakhpur, that is one of the best publishers. So you can have that. The second book is written by a European, Mr. Alistair Shearer. This is the book, Effortless Being. In fact, all the books on which I rely, I will write a separate email to all of you. But I will write that email only to people who have attended today, because other people, if they are not interested, I should not waste their time. So, Alistair calls the title of the book as Effortless Being. And it's a very interesting title. We see people struggling for their daily life. Every day starts with a struggle, every day ends with a struggle, and especially at a youth age, when somebody has targets that I have to fulfill so and so target, I have to earn so much money, my wife wants to buy so and so thing, my children want so and so things. Now all these things, it takes up a whole lot of energy of that person. Patanjali says, why are you struggling? Life is not meant for struggle. You can really enjoy your life effortlessly. Now, to us, it looks very difficult. How can you live an effortless life if you have got so many targets to fulfill and your boss is after your blood to fulfill the target? You can't do it. Life is not meant for struggles. That is very clear. Patanjali says, if you live a pure life, you will see that slowly, slowly life will become less and less of struggle and more of joy. Life is to be enjoyed. Life is to be celebrated. Life is not meant for struggles. And that is why Alistair calls that Patanjali gives you the magic of living an effortless life. Now, it is very difficult to find a person who does not set up targets. This year I have earned 1 crore of rupees. Next year I want to 1.5 crore. Next year more and more that. The only exception I have so far seen is Atul Ambawat. Atul Ambawat has said, I have no such targets. I will live a proper life. I will not cause pollution. I will not cause harm to anybody in the earth. And I will live a clean life. Now,
Now he is living an effortless life already. He has not read Patanjali Yoga Sutra, I am pretty sure. Right, Atul? Have you read Patanjali Yoga Sutra? No. Yeah. You have not read, but he is living an effortless life. So as anybody can live that life as soon as, in fact, take Mittal's case. Mittal, probably you can tell me whether I am right or wrong. In 2010, you were struggling. बहुत मुश्किलें थी, बहुत तकलीफें थी, ठीक है, और धीरे 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 करके आज ये परिस्थिति हो गई है कि मेहनत तो उतनी ही करती है, दिन का 14 घंटा काम कर रही है, मगर आज की तारीख में लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ शांति से हो रहा है। जो 2010 में एक महीना मेहनत करने के बाद में भी जो काम नहीं हो सकता था, आज एक दिन में उससे ज्यादा बहुत काम हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं? You are proved to be a karma yogi. You have started karma yoga maybe for 15-16 years. You have been doing it. Today you have reached a stage which a yogi reaches a stage that thereafter things become easy. You don't have to struggle for it. That is the gift of Patanjali Yoga Sutra, if we can accept it. Okay. Now tomorrow a client comes and says, okay, your fee is to be paid. He is ready to pay you by check or he is ready to pay you by cash. Now if he pays cash, then straight away you save 35%. Would you like to save 35% or would you like to stick to honesty? That is the issue. Now, very few people can stick to honesty. I'm not criticizing or commenting on anybody. I'm simply saying that Patanjali has said this. I have followed this, that if you follow 100% purity in your life, then your life becomes free from struggle, free from tension. You can enjoy your life. Yes, people. હું એવું કહું કે ભય નથી રહેતો ને. હા, કોઈ જાતનો ડર નથી. ડર નથી રહેતો. અને બીજું લાઈફને એન્જોય કરવાની વાત છે એ 100% સાચું છે. એકચ્યુઅલી આ બધા કામોમાં કેવું છે કે તમે એટલા બધા રચ્યા પચ્યા હો, એ પેઇન એ તકલીફો આપણે આપણામાં લઈ લેતા હોઈએ, પણ પછી એ તકલીફો પોતાની મેળે જ જ્યારે તમને એને ઈઝી લેવાનું શરૂ કરી દો છો ને, પછી પોતાની મેળે કુદરત એને સ્મૂથ કરતું હોય છે. આ મારો એક્સપિરિયન્સ એમ. અને બીજું એવું છે કે પ્યોરિટી હોય ત્યાં પછી કોઈ ડર નથી કોઈ પણ ચીજનો, કોઈ ગમે એ માંગે આપણે. સોરી મિત્તલ, તારો અવાજ કટ થઈ ગયો. We can't hear you. Okay, I think Mittal will come back. Probably there must be some internet problem there. Okay, so these are the two books which Mittal, તું જે છેલ્લે બોલી એ કટ થઈ ગયો. હા, એટલે હું એ કહું છું કે એ પ્યોરિટી છે ને, પછી કોઈ ચીજનો આપણને ભય નથી રહેતો. એ ઇન્કમ ટેક્સ હોય, હોમ મિનિસ્ટ્રી, ભૌતિક પર્સપેક્ટિવ થી એને વિચારીએ આપણે તો એ બધામાં. એટલે એ છે અને લાઈફ સ્મૂથ થાય છે તો ડેફિનેટલી જસ્ટ એ છે કે બિલીવ. મને આ તમે બધી બહુ બધી વાતો કરી, એમાં બહુ બધું સમજ નહીં પડી, પણ એટલું સમજાય છે કે ઈશ્વર પરનો ફેથ તમારો પ્યોર છે અને એના ઉપરની શ્રદ્ધા કાયમ છે અને તમે પ્યોર છો તો આ બધી ચીજો પોતાની મેળે એક રસ્તો સ્મૂથ કરે છે અને એ થાય છે એમ એવું છે. બરાબર છે. એટલે આમાં બે ચીજ છે. એવું કહ્યું છે કે ગીતા અભયદાન કરે છે. એટલે શું, હવે તમારી સામે એક પુસ્તક પડ્યું છે, કેવી રીતે અભયદાન કરે? એનો અર્થ એ છે કે if you understand Gita properly and if you live the life as suggested by Gita, then your life becomes free from fear, free from tension, free from struggles. That is the message. Okay. So, Asha, the second thing is, if you listen to 1,000 lectures and if you read 1,000 books, the benefit to you will be hardly 2%. But if you go out and live that life, you put that life into practice, all the suggestions into practice, all the suggestions, nahi, whatever suggestions you accept, whatever you like, what your heart tells you, you put that into practice, then only you will get an experience. अनुभव के बिना अनुभूति नहीं. जब आपको अनुभव होगा तब अनुभूति होगी. अनुभूति का अंग्रेजी शब्द है रियलाइजेशन. हमें रियलाइजेशन जब होगा, जब साक्षात धर्म को हम समझ लेंगे और उसको, वो धर्म को जब हम जीवन में उतारेंगे तो ही उसका रियलाइजेशन हो सकता है. So these two books, I will of course, not only two books, there are some books which are available free of charge on the internet. I'll give all those links and everything. Now I'll just, actually we are already 25 at 6:25. Anybody wants to ask any query, please?
or wants to make any comment? Otherwise, I will quickly take you through the first 4 slokas of Patanjali Yoga Sutra. Okay, I'll take to the first 4 slokas. Actually, why I am reading a good Gujarati literature as well as literature written by foreigners. Generally, our belief is that foreigners will not be able to understand the depth of our Hindu philosophy or Indian philosophy. But that is not correct. It is like, I will elaborate little later, but every writer gives his own perspective. And we, to understand Patanjali Yoga Sutra or Vedanta or Sanatana Satya is extremely difficult. When we read 5 different authors, we get 5 different perceptions. And that improves our own perception, and ultimately we get deeper and deeper knowledge of the particular subject. And that is why I always read on any difficult subject. In fact, when I was doing my chartered accountancy, for accountancy I had 3-4 books. For economics I had 2-3-4 books. For every subject I had several books, even as a student. And can I say something? Actually, what you are saying is correct. We must refer to the Westerners are more fascinated by the Eastern knowledge. yes. In fact, University of California, Los Angeles has done a lot of research on how meditation impacts a person at the genomic level, and also what kind of changes it brings about in the brain. Whereas I have not had any institute or research institutes in India doing that kind of research. Correct. So it is absolutely okay. Whatever they do, they kind of put in their best. They put in their 100% to understand everything. So right. it's perfectly okay to refer to foreign authors also to understand our own philosophy sometimes. Yes. So the first slok is, and you listen, see the way he is writing, Atha Yoga Anusasanam. Now he does not even write a full sentence. सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और क्रियापद होता है, वर्ब होता है. हाँ, तो ये वर्ब को छोड़ देते हैं. He writes only minimum words which is necessary so that it is easy to remember, it is easy to pass on from generation to generation. So he says, now I am starting the discipline of yoga. Sasan does not mean rule. Rule in the sense that king is ruling. Sasan means discipline, sabhyata. Second, योगः चित्त वृत्ति निरोध. योग क्या है कि चित्त की वृत्ति को संयम में लाओ, वो योग है, बस. इससे ज्यादा कुछ नहीं है. हाँ, तो जो लोग शरीर के शासन, शरीर के आसन की, कसरत की, प्राणायाम की बात करते हैं, they have missed the whole subject. Here the 100% focus is on mind. You manage your mind, and as Anandi ji said, mind is uncontrollable. You just can't tame it. Okay. Then how do you bring it to peace? Now that is the whole art. You can look at the mind and the mind becomes quiet. But of course that is very, what today in 2-3 minutes I am saying is, in very brief, next session we will take, where we will take each slok and we'll have elaborate discussion on each slok, and we'll try to hopefully complete within next 1.5 hours. So the Yoga, Atha Yoga Anusasanam. Second, Yoga चित्तवृत्ति निरोध. इसमें पूरा हो गया, बस आपका बात पूरा हो गया. सेकंड श्लोक में आपने मन को संयम में रख लिया, आपका योग पूरा हो गया. तीसरा श्लोक है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम. जिसने अपने मन को संयम में ला लिया, उसने अल्टीमेट ट्रुथ देख लिया, बात खत्म. और चौथा श्लोक ये बोलता है कि जिसने अपने मन को संयम में नहीं रखा, वो संसार में भटकता रहेगा. इसकी लाइफ स्ट्रगल वाली रहेगी, उसको डिफिकल्टीज आएगी, टेंशन आएगा, सब कुछ होएगा. ये 4 श्लोक में पतंजलि योग सूत्र पूरा हो जाता है. अभी जो दूसरा श्लोक है योगः चित्तवृत्ति निरोधम, उसके लिए बाकी 195 श्लोक्स है, और वो हम सेकंड सेशन में करेंगे. नाउ वी हैव रीच्ड 6:30, so I would rather, shall we close today's discussion? Before that, I'll once again ask if anybody wants to make any comment. You can please make a comment, and then we will close.
I would also make Tha- one. Sorry. Thank you so much for inviting me. No, my pleasure. Atul, ek j second. What I am saying is, from today and up to the next meeting, I will send a few notes giving full information about this subject. Please believe me, the subject is easy, provided we understand the whole background of it. And there is a whole lot of concepts which go into philosophy, and I will elaborate all the concepts. In fact, if I elaborate all concepts, that will be a 300-page book. But I would like to finish it off in 30 pages. Now, please find the time to read those 30 pages. If you read those 30 pages and understand those concepts, you will be able to understand Patanjali Yoga Sutra. Thank you. Yes, Atul, please. No, sir, I just said that we thoroughly enjoyed. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, goodbye everybody. सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं। हाँ, जरूर कृष्ण कुमार जी। सर जो मेरा लिमिटेड नॉलेज है अष्टांग योग के बारे में, आई थिंक बहुत ब्रीफली जो आपने और जो मैडम आनंदी जी ने टच किया है, तो जो उसके 8 विधा हैं, जब लास्ट समाधि तक पहुंचते हैं, 7वें नंबर पे मेडिटेशन आता है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो नेचुरली वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, एंड लूजली आई कैन से कि उसके पहले हमें अधिकारी होना पड़ेगा, और अधिकारी होने के लिए जो कंडीशंस बताइए, जो पहली यम नियम, तो आपका ब्रॉडली जो आपका जो ये लेक्चर था सर हम लोगों के लिए, वो यम नियम पे रहा। एंड मैडम ने ब्रीफली पॉइंट नंबर जो 3 और 4 जो हम लूजली बोलते हैं, जिसको आसन एंड प्राणायाम, जिसको लोग योग समझते हैं, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, चाहे से उन दो को साइड में रख देते हैं, आसन एंड प्राणायाम। तो 2 अलग हो गए, एंड 2 के लिए मैडम ने ब्यूटीफुली 3 मिनट के अंदर बता दिया, उसके अंदर धारणा एंड प्रत्याहार के लिए। लास्ट 2 बचते हैं मेडिटेशन एंड समाधि। तो अल्टीमेटली समाधि तक पहुंचना है, तो थोड़े एक प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी करते रहेंगे, देखते भी रहेंगे, अपने आप को वाउच भी करते रहेंगे कि जो आपने बताया प्योरिटी ऑफ थॉट, प्योरिटी ऑफ बॉडी, प्योरिटी ऑफ माइंड, एंड जो यम नियम के बाकी भी जो 5 सिद्धांत है और है, तो उसके बाद खुद को ही अंदर से अच्छा लगने लगेगा, तो शायद वहां तक पहुंच पाएंगे जो आप देखते हैं हम लोगों के लिए। मेनी थैंक्स सर, मेनी थैंक्स, ग्रेटफुल। Thank you everybody. Thank you everybody. Thank you.